everyone, I'm Dr. Shilpa Bell. Today we will discuss about the financial statement. So in this we will discuss about the trading account, profit and loss account and the balance sheet. Now here is the question is given to you and the trial balance of Ritesh Trader at 31st March 2019. From this trial balance we have to make the three accounts: trading, profit and loss and the balance sheet. Now the adjustments are also given here, so I will tell you in which account all these items will be put. So first is your opening stock. Opening stock will come in the trading account at the debit side. Purchases, again trading account debit side. Sales, trading account credit side. Wages, trading account debit side. Carriage inward, trading account credit side. Freight on purchases, trading account debit side. Salaries, insurance will come in the profit and loss account debit side. Repair to machinery will come on debit side of P&L account. Drawings, that will come in the balance sheet. Fine. Customers account, so we will discuss one by one. Fine. So how did we have to put in the trading account and P&L account, and the side by side we will do the adjustments also. So first is the opening stock. So you can see here opening stock will come under the trading account. So this is the format of the trading account. So we are making the financial statement of Ritesh Traders trading account for the year ended March 31st 2019. So this is your debit side and this is your credit side. So opening stock, the amount is 5,620. Next is your purchases. So purchases amount is 1,54,200. So we have put 1,54,200 here, and we have to see there is no adjustment relating to the purchases, and nothing is also mentioned in the trial balance. Is there any purchases returned? Now we are moving to the sales. Fine. So sales amount is 3,74,800. Next is the wages. So wages is 1,26,000. Fine. So we can see here there is adjustment is related to the wages. So here wages include rupees 4,800 for installation of a new machinery. ठीक है, तो ये आपका wrongly added हो गया है. हमने मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए 4,800 दिए थे, but it has been wrongly added in the वेजेस अकाउंट. तो वेजेस अकाउंट में से हम इसे क्या है माइनस कर देंगे 4,800, और आपका जो टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा आपका आउटर कॉलम में. तो 4,800 माइनस कर दिए तो हमारे पास आ गया 1,21,200. ठीक है. नाउ दिस इज द वन एडजस्टमेंट वी हैव डन. तो इसके साथ साइमल्टेनियसली हमने सेकंड एडजस्टमेंट भी करनी है. हम जब उसके बाद आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हम सेकंड एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे. तो सबसे पहले हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है. तो रिमेंबर कि आपको अभी 4,800 जो रॉन्गली एडेड हुआ है वेजेस में फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, उसकी हमें अभी सेकंड एंट्री करनी है. नेक्स्ट is coming the carriage inward. ठीक है. तो carriage inward आपका 900. Next आपका है freight on purchases, that is 4,900. We have written freight on purchases. Now one adjustment is given is of the closing stock. तो closing stock भी आपकी एक adjustment है. तो again ये दो अकाउंट में आती है. One is your trading account and another is your बैलेंस शीट. तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड की तरफ. ठीक है. तो क्लोजिंग स्टॉक 19,000. हम एक बार फिर ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं कि कोई अमाउंट कोई ऐसे पर्टिकुलर तो नहीं बच गया जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आना है. नो. सो नो पर्टिकुलर इज रिमेनिंग that we have to write in the trading account. तो हमें सब क्या है ट्रेडिंग अकाउंट को हम बैलेंस कर लेंगे. तो
तो यहाँ पर जब आप इसे बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट आ रहा है दैट इज 3,93,800, ठीक है। तो सेम अमाउंट हम डेबिट साइड में भी लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास क्रेडिट साइड का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो सेम अमाउंट हम डेबिट साइड पर भी लिख लेंगे। और जो हमने ये डेबिट साइड का जब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो डेबिट साइड का जब हम सम की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो आ रहा है हमारे पास 11,420. So when we will deduct 11,420 from 3,93,800, so हमारे पास अमाउंट आ जाए, सॉरी, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 1,06,980, ठीक है। तो दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसको हम बैलेंसिंग फिगर भी बोलते हैं। और ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो नाउ वी आर कमिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यू कैन सी है कि हमने ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हमने ब्रॉड डाउन कर लिया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड पे हम इसे लिख चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी वही आपका सेम फॉर्मेट है जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया था, बस हम उसकी जगह हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। Now we are moving to the profit and loss account. Okay, so salaries. So salaries is 8,000 rupees, ठीक है। तो हम सबसे पहले सैलरी 8,000 rupees लिखेंगे अपने P&L अकाउंट में एंड simultaneously we are checking the adjustment entry related to the salary. So there is no adjustment entry related to the salary. तो हम सैलरी, ये देखिए ये आपकी सैलरीज है यहाँ पर 8,000, तो हमने यहाँ पर 8,000 सैलरी अपने P&L अकाउंट में लिख दिए। तो आप किसी भी नंबर में आप कोई भी चीज आप पहले लिख सकते हो, कोई भी चीज आप बाद में लिख सकते हो। देयर इज नो रूल एंड रेगुलेशन कि आपने ये आइटम पहले ही लिखनी है और ये आइटम बाद में लिखनी है। सो यू कैन डू, बस आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट में होता है कि ओपनिंग स्टॉक आपको फर्स्ट लिखना होता है, क्लोजिंग स्टॉक आपका लास्ट होता है। P&L अकाउंट में आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बस आपको एक ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका हेड पर आता है। तो यहाँ पर आपने लिख दी सैलरीज, ठीक है। सैलरीज के बाद हम देखते हैं क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज 2,800 और यहाँ पर हमने इंश्योरेंस को प्रीपेड किया है, मतलब कि हमने पहले ही पेमेंट कर दी है इंश्योरेंस की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंश्योरेंस 2,800 और प्रीपेड की एंट्री क्या होती है, प्रीपेड को हम माइनस करते हैं, हम एडवांस में कर चुके हैं तो 700 हमने माइनस कर दिए, द अमाउंट विल कम 2,100 एंड सेम दिस प्रीपेड इंश्योरेंस वी विल राइट इन द बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड, सो यू कैन सी हियर बैलेंस शीट में हमने एसेट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस लिखी है दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 700। नेक्स्ट है आपके पास रिपेयर टू मशीनरी 1,400. So repair to machinery. So this is also the expense for the business and it will come in the debit side of P&L account. So it will has 1,400. Next is the drawings. So I have already told you the drawings will come in the लायबिलिटी साइड इन दी कैपिटल। तो कैपिटल में से हम ड्राइंग्स को लेस करते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से लेस करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए हमने ड्राइंग्स को लायबिलिटी साइड में लिख लिया है और ये माइनस होगा कैपिटल में से। नेक्स्ट इज दी कस्टमर्स अकाउंट 15,800। तो हमने क्या है, कस्टमर का एक अकाउंट बनाया है, ठीक है, 15,800 का।
ठीक है। तो कस्टमर अकाउंट आपके क्या होते हैं, डेटर्स, इनको हम डेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कस्टमर अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज योर डेटर्स। तो इनको हम डेटर्स भी बोलते हैं। तो आप जहां देखेंगे हमने 15,800 हमने डेटर्स के आगे लिखे हैं। तो हियर वी ऑल्सो राइट द कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमें डेटर से रिलेटेड कोई एंट्री दी हुई है, एडजस्टमेंट एंट्री। यस, द एडजस्टमेंट एंट्री इज गिवन। आपकी थर्ड एडजस्टमेंट एंट्री है, दैट इज राइट ऑफ 2000 एज बैड डेट्स। तो ये आपके क्या है, नए बैड डेट्स है, फर्दर बैड डेट्स है। तो यहाँ पर आप इन फर्दर बैड डेट्स को क्या है, माइनस कर दोगे। आपके 15,800 में से आपके 2000 आपका माइनस हो जाएगा। so the amount will come as 13,800। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक और बैड डेट की देखिए, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%। तो हमें क्या है, एक प्रोविजन क्रिएट करना है। तो जो हमारा प्रोविजन क्रिएट होगा वो 15,800 पर क्रिएट नहीं होगा, वो हमारा होगा 13,800 पे। आई एम शोइंग यू द कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप पहले सन्डे डेटर में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा, तो जितना रेट आपको दिया हुआ है आपके प्रोविजन को क्रिएट करने का, उस पर आप उसे कैलकुलेट करोगे। तो अब आपका 13,800 पर आप 5% की आप कैलकुलेशन करोगे, सो दैट विल कम 690 rupees. So this 690 will also be deducted from it and the amount will come 13,110. तो ये जो आपकी एंट्री है दैट यू विल डू इन दी बैलेंस शीट। ठीक है, इसके साथ साथ आप इसकी जो एंट्री है वो आप अपने पीएनएल अकाउंट में भी करेंगे। सो हियर इज इट। तो आपके कोई भी ओल्ड बैड डेट्स आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं दे रखा। आपका न्यू बैड डेट्स 2000 है, उसमें आप अपना न्यू प्रोविजन ऐड कर देंगे 690, और आपका कोई ओल्ड प्रोविजन भी नहीं दे रखा जिसको हम लेस करते हैं। सो द अमाउंट ऑफ द बैड डेट्स, ये आपका एक्सपेंस है, तो इट विल कम एज 2690। Now we are coming to the postage. Postage is again the expense for the business and no adjustment is given related to it. So हम postage simple ऐसे ही लिख देंगे. You can see here postage 500. Next is the trade expenses. So again no adjustment. So simple trade expenses is the expense for the business and we will write on the P&L account. In the P&L account at the debit side 1,000 rupees. Now we are moving on the interest on securities. Now this interest on security is the income for the business. जहाँ पे हमने investment कर रखी है वहां से हमें क्या है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो this interest on securities will come in the credit side of the P&L account. तो ये आपका अमाउंट आज यहाँ पर आ जाएगा। Now the land and building. The land and building is the asset for the business. So it will come on in the balance sheet on the asset side. So we can write land and building 10 lakh. तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एडजस्टमेंट भी दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग के। तो यू हैव टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट 5%। तो आपको 10 लाख पर क्या है 5% का डेप्रिसिएशन क्रिएट करना है, दैट विल कम 50,000। सो अगेन आई एम शोइंग यू द वर्किंग नोट्स। तो आप बिल्डिंग पर दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, हमने 10 लाख पे 5% क्रिएट किया, द अमाउंट विल कम एज 50,000। सो दिस डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड और जो टोटल अमाउंट आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 9,50,000। नाउ जो हमने ये डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे लगाया है उसको हम साथ साथ अपने पीएनएल अकाउंट में भी लिखेंगे डेबिट साइड में। ठीक है, तो हम इसे एक डेप्रिसिएशन के हेड के अंदर भी लिख सकते हैं और हम अलग अलग भी लिख सकते हैं जैसा आपका दिल करे। तो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन के हेड के अंदर लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। ठीक है,
क्योंकि अभी मुझे प्लांट एंड मशीनरी में भी लगाना है, तो इसे मैं एड अप नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने लैंड एंड बिल्डिंग का 50,000 लिख दिया है। नाउ लैंड एंड बिल्डिंग के बाद आपके पास है सिक्योरिटीज, कैश इन हैंड। सो दीज बोथ सिक्योरिटीज एंड कैश इन हैंड इज द एसेट फॉर द बिजनेस। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे देखिए सिक्योरिटीज लिखी है 6 लाख, ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली वी हैव दीज आर द करंट एसेट्स बेसिकली कैश इन हैंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैश इन हैंड भी मैंने यहाँ पे सिक्योरिटीज के बाद मैंने कैश इन हैंड भी लिखा है। Next is the bank overdraft. Now this bank overdraft is the liability for the business. कि बैंक के पास हमने बैंक से कुछ पैसा उधार लिया है, जैसे हम ओवरड्राफ्ट का अकाउंट खुलवाते हैं तो हम उससे पैसा निकालते रहते हैं, तो हमें पैसा वापस भी डालना पड़ता है उस ओवरड्राफ्ट अकाउंट में। सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज द करंट लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो इसे हम लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटीज के हेड के अंडर बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट लिख देंगे। Next is the discount allowed. Now we have allowed the discount. So this is the expense for the business again. ठीक है, तो इसको हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे, discount allowed. Next is the discount received. Now we are receiving the discount as an organization. So this is the income for the business. So discount received will come under the P&L account on the credit side. Next is the bill payable. So bill payable will come in the balance sheet on the liability side because we have to pay the bill. तो bill payable हमें bill pay करना है, ये liability है business की, ठीक है, that is 4,000. और अगर यहाँ पे आपका bill receivable भी है तो bill receivable आपका asset side में आ जाएगा. You can see जो bill receivable है that will come in the asset side of the balance sheet. Loan लिखा हुआ है credit, so that means this is the liability for the business. ठीक है, तो loan आपका 11,000. बिल रिसीवेबल में आपको बता चुकी हूँ. नेक्स्ट इज योर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट आपका लायबिलिटी साइड में आएगा. ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट लिख दिया. इसमें से आपने ड्राइंग लेस करनी है, बट अभी नहीं, सीधा हम ड्राइंग लेस नहीं करते हैं. हमने अभी कैपिटल लिखा है और इनर कॉलम में उसका अमाउंट लिख दिया है. Next is the suppliers account. Suppliers account is also known as the creditors of the business. So these are the creditors of the business. तो ये हमारे liability side में जाएंगे 40,000. कोई भी adjustment entry नहीं है. Again X loan at the credit 18,600. तो ये भी credit है, liability है business की, तो current account liabilities के अंदर हमने X loan को लिख दिया. और लास्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी. सो प्लांट एंड मशीनरी एसेट फॉर द बिजनेस. हमने इसे लिखा, हमारी एक एडजस्टमेंट एंट्री रह गई थी जो हमने रॉन्ग इंक्लूजन कर दी थी वेजेस की. ठीक है, जब हमने अपनी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करी थी, तो वो उस प्लांट एंड मशीनरी में हम इन वेजेस को क्या है एड अप करेंगे. सो यहाँ पर आपका 1,82,000 में we will add the 4,800. So the amount will come 1,86,800. So you can see here in the adjustment हमें यहाँ पे क्या है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है प्लांट एंड मशीनरी पर 10%. तो हम 1,86,000 पर 1,86,800 पर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे. वेजेस जो हमने रॉन्गली एडेड कर दी थी वेजेस में, उसको हम पहले प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करेंगे और उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाएंगे. तो वो आपके पास इतना आ जाएगा. तो टोटल अमाउंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो आपके पास जो टोटल आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट दैट विल कम 1,68,120. So this amount will come. और साथ के साथ हम डेप्रिसिएशन के हेड के अंदर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू लिख देंगे. ठीक है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 68,06,800. तो आप जब भी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो कोशिश करिएगा कि आप तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाएं ताकि आपकी कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री मिस ना हो जाए। फाइन। अब अगेन P&L अकाउंट में हम फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। सो बैलेंसिंग फिगर जब हम निकाल रहे हैं तो हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है और डेबिट साइड कम आ रही है। दैट मीन्स वी हैव अ नेट प्रॉफिट। अगर ये हमारे साथ उल्टा होता, हमारी डेबिट साइड ज्यादा आती और क्रेडिट साइड कम आती, तो हमारा नेट लॉस होता। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है? नेट प्रॉफिट। तो इस नेट प्रॉफिट को हम पहले कैपिटल में एड अप करेंगे। जितना अमाउंट और आएगा सम अप करके, उस अमाउंट में से हम ड्रॉइंग्स को लेस कर देंगे और टोटल अमाउंट आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और एसेट साइड को सम अप करेंगे। फाइन। तो जब हम अपनी बैलेंस शीट को लायबिलिटी साइड और एसेट साइड को सम अप करें, उन दोनों का बैलेंस आपके पास इक्वल आना चाहिए। ठीक है। अगर आपका बैलेंस इक्वल नहीं है, so that means you have done some mistake while writing the things। ठीक है। जो भी आपके पर्टिकुलर है उसमें मिस्टेक करी है या फिर आपने कुछ एडजस्टमेंट पे मिस्टेक करी है। सो दिस इज द होल क्वेश्चन ऑफ द बैलेंस शीट in which we have included the trading account, P&L account and the balance sheet. Fine. Hope you will understand this lecture. Please like it, share it. Thank you so much for listening me.